علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے نفع بخش زرعی کاروبار کا کورس پیش کیا جا چکا ہے۔ مختلف نفع بخش زرعی مہارتوں کی وضاحت کے لیے ٹیلی ویژن پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے ریشم کے کیڑے پالنا۔ خالق کائنات نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں میں بھی خاصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ریشم کے کیڑے بھی ہمارے لیے ایک مفید مخلوق ہے۔ قدرت نے ریشم کے کیڑوں کو ریشمی دھاگا بنانے کی خوبی عطا فرمائی ہے۔ ریشم کے کیڑے اپنے منہ سے خاص قسم کا باریک اور چمکدار تار خارج کرتے ہیں اور اس تار کو وہ اپنے جسم کے ارد گرد جالے کی طرح بن لیتے ہیں۔ کیڑوں کے منہ سے نکلا ہوا یہی لعاب یا ریشم ہمیں کوکون یا کویوں کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ ریشم کا دھاگا طرح طرح کے دیدہ زیب ریشمی کپڑے بنانے کے کام آتا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت بہت کم لوگ ریشم سازی کے فن سے واقف تھے، لیکن پچھلے چند برسوں میں ہمارے ملک میں بہت سے لوگوں نے ریشم سازی کی صنعت کو اپنا لیا ہے۔ ریشم کے کیڑے پالنا ایک نفع بخش گھریلو صنعت ہے جس میں بوڑھے، بچے اور خواتین آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ ریشم کے کیڑے پال کر چند دنوں کی محنت سے ریشم کے کوکون حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بازار میں یہ کوکون براہ راست بھی فروخت کیے جا سکتے ہیں اور ریشم تیار کر کے بھی۔ اس طرح ریشم کے کیڑے پالنا ایک عام گھرانے کے لیے خصوصاً دیہات میں معقول آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ریشم کے کیڑے پالنے سے متعلق ان باتوں کی وضاحت کی جائے گی: انڈوں کی فراہمی، کیڑوں کی پرورش اور کوکون سے ریشمی دھاگا نکالنا۔ ناظرین، ریشم کے کیڑے پالنے کا آغاز انڈوں سے ہوتا ہے۔ ریشم سازی میں انڈوں کا حصول ایک بنیادی چیز ہے جو ہیچری میں باقاعدہ تیار کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں معیاری قسم کے انڈے شعبہ ریشم سائنٹیفک طریقے سے سرد علاقوں میں تیار کرتا ہے۔ ریشم سازی ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ عوام ریشم کے انڈے حاصل کر کے ان کو پالتے ہیں اور ریشم پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، جس کا آغاز ریشم کے کیڑوں کے انڈوں سے ہوتا ہے جو کہ سیریکلچر سینٹر مری میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہم ہر سال اپریل کے آخری میں سلک کا خون مختلف علاقوں سے یہاں لے آتے ہیں اور مختلف مراحل گزرنے کے بعد دسمبر تک ہم صحت مند سلک سیڈ پیدا کر لیتے ہیں، جس کی پیکنگ، وزن کرنا کا کام میں اب آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ اب آپ ریشم کے کیڑوں کے انڈے دیکھ رہے ہیں، ان کو یہاں پر وزن کیا جا رہا ہے۔ 14 گرام کی پیکنگ ہم تیار کرتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 20,000 انڈے ہوتی ہے۔ ریشم کے کیڑوں کے انڈے جو ہیں وہ اب ایک پیکٹ میں ڈالے جا رہے ہیں کیف کے ذریعے۔ یہ پیکٹ خاص طور پر تیار کیے جاتے ہیں لکڑی کے باریک فریم پر اور ان کے گرد باریک ململ لپیٹ دی جاتی ہے تاکہ انڈوں کو ہوا اور موئسچر وغیرہ، نمی وغیرہ پہنچتی رہے۔ اب کیف میں ڈالنے کے بعد اس نے پیکٹ میں ڈال دیے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پر اب کاریگر جو ہے وہ لیبل لگا رہا ہے، جس کو ہم سیل کرنا کہتے ہیں۔ منہ بند کر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ انڈے جو ہیں وہ بہت باریک ہوتے ہیں، ان کے باہر نکلنے کا یا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر باکس نمبر لکھنے کے بعد وہ اپنے ریکارڈ میں اس کو تیار کر لے گا تاکہ ضرورت پر اگلے آنے والے سیزن میں عوام میں اس کو فروخت کر دیا جائے۔ یہ باکس جو ہیں وہ تیار ہیں پبلک کی سیل کے لیے، استعمال کے لیے۔ ناظرین، یہ پیکٹ ہیں سلک سیڈ کے جو کہ مری سینٹر سے تیار ہو کر عوام میں سیزن آنے پر فروخت کر دی جاتے ہیں۔ زمیندار ہم سے لے جا کر گھروں میں اس کو پہلے انکیوبیٹ کرتے ہیں۔ انکیوبیشن کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ انکیوبیٹر کا، جہاں جہاں بجلی ہے وہ یہ انکیوبیٹر پڑا ہے، اس سے وہ کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو عام طور پر رائج ہے، جہاں بجلی نہیں ہے، وہ ان کیڑوں کو اس طرح نکال کر تمام انڈوں کو اس پیکٹ سے نکال لیتے ہیں اور ایک رومال صاف میں لے کر اس کو چھوٹی سی اس کی پوٹلی بنا لیتے ہیں اور اس پر ہم دھاگا لپیٹ دیتے ہیں۔
फिर ये पोटली लेकर हम हांडी में कुछ रुई रखते हैं नीचे, और इसको इस पोटली को दरमियान में रख देते हैं और उसके ऊपर और रुई डाल देते हैं। रुई रखने के बाद इसका मुंह बंद किया और इस हांडी को हमने लपेट दिया। ये हांडी 11 दिन तक एक महफूज जगह जहां पे गर्मी पड़ रही है वहां पे पड़ी रहती है, और 11 दिन के बाद इसमें से अंडे निकलते हैं, छोटे बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे, जो कि इस शक्ल में होते हैं, जिनका साइज आप देख सकते हैं। ये प्रिजर्व की जिंदा नहीं है, ये प्रिजर्व की सैंपल के तौर पर हैं, और इनको हम फौरी तौर पर फीड करना शुरू कर देते हैं दूध के पत्तों से, और ये खुराक खाना शुरू कर देते हैं। तो 3 दिन के बाद हर दफा ये नींद में जाते हैं। 8वें दिन ये दूसरी मोल्ट आ जाती है, दूसरी स्टेज। ये आप देखें इसमें साफ नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े कीड़े हैं। तो ये साइज 8 दिन का है। आप इसको खुराक लगातार देते रहते हैं दिन में 4 दफा, और उसके बाद 35 दिन तक ये काम जारी रहता है। खुराक देंगे, बिस्तरों की सफाई करेंगे और उनकी हर नींद का ख्याल रखेंगे। 35 दिन के बाद जो मेच्योर लार्वा कीड़ा जो है इस शक्ल में बन जाता है। ये है असल में सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा इस साइज का। ये प्रिजर्व किए हुए हैं, जिंदा नहीं है। जिंदा आपको फील्ड में जाकर दिखाएंगे। तो इसको दवाई में रखा हुआ है। ये कीड़ा जो है आखिरी स्टेज पर जाके खुराक खाना, दूध के पत्ते बंद कर देता है, अपने मुंह से लुआब निकालता है और अपने गिर्द रेशम लपेटना शुरू कर देता है। 3 दिन में ये ककून इस शक्ल में आ जाती है। तो रेशम देने के लिए जरूरी है कि हम इन ककून को धूप में रखकर खुश्क कर लें। ये जिम्मेदार काम सारे का सारा 35 से लेकर 40 दिनों में मुकम्मल कर लेता है, और एक पैकेट से उसके 12 किलोग्राम ककून तैयार हो जाते हैं इस शक्ल में। सारे के सारे रेशम होगा, और ये प्योर रेशम है, और वो इसको ये कैश क्रॉप बन जाती है, वो इसको फरोख्त करता है। रेशम के कीड़े पालने के लिए बुनियादी इंतजाम। रेशम के कीड़े पालने के लिए उनकी खुराक का बंदोबस्त करना एक बुनियादी काम है। रेशम के कीड़ों की खुराक सिर्फ शहतूत के पत्ते हैं, लिहाजा कीड़े पालने से पहले शहतूत के दरख्तों की मुनासिब तादाद का इत्मीनान कर लेना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ी बहुत जमीन और पानी की सहूलत मौजूद हो तो आप खुद भी शहतूत की कलमें लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद कलमें पौधों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस तरह आपके पास शहतूत के दरख्तों का अपना जखीरा तैयार हो सकता है। रेशम के कीड़े पालने के लिए घर का आम कमरा या स्टोर काम में लाया जा सकता है। अलबत्ता ये जरूरी है कि ऐसे कमरे को स्प्रे करके जरासीम से पाक साफ कर लिया जाए। कीड़ों की परवरिश के जरूरी सामान मसलन स्टैंड और खाली ट्रे वगैरह पर फार्मेलिन की स्प्रे की जाती है। इस तरह आप कमरे के जरासीम तलफ कर सकते हैं। कमरे के दरवाजों पर बारीक जाली लगानी चाहिए ताकि रेशम के कीड़े चिड़ियों और छिपकलियों वगैरह से महफूज रह सकें। कमरे में रोशनदान भी मौजूद होना चाहिए। नाज़रीन, अब मैं आपको रेशम के कीड़ों के अंडों की इंक्यूबेशन के अगले मरहले से मतला करता हूँ। हंडी में हमने 10 दिन तक इन अंडों को रखा था। अब उससे जिसे निकालते हैं तो हम ये इस हंडिया में से निकाल कर इसको दूध में रख दें। डायरेक्ट 2-3 मिनट तक, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं वरना नुकसान पहुँच सकता है। आप इसको डायरेक्ट हीट देंगे कपड़े के साए में ताकि रोशनी भी थोड़ी सी जाए और हीट भी मिले। 2-3 मिनट जब इसको रोशनी गर्मी मिलती है सूरज की तो उसके खोल में से शेल जो हैं छोटे छोटे उनमें से बच्चे निकलाते हैं अलग अलग। तो हम बच्चों को फिर मुर्गी का पर लेकर उसको अलहदा करते हैं मुर्गी के पर के साथ, जो ताकियों के बहुत नाजुक होते हैं। उस वक्त बड़े एहतियात की ज़रूरत है। आप इस मुर्गी के पर के साथ बच्चों को अलहदा करेंगे और शेल्स अलहदा हो जाएंगे। शेल्स को जिसमें अभी मज़ीद अंडे कुछ रह जाते हैं वो दूसरे दिन के लिए रख देते हैं ताकि अगला बैच बन जाएगा। एक बैच हम बच्चों का अलहदा करके रेशम कीड़ों का ले आते हैं, अलहदा ट्रे में रख लेते हैं। वहाँ पे हमने इनको फौरी तौर पर खुराक देनी है। वो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये खुराक है। खुराक का मतलब
रेशम के कीड़ों की सिर्फ एक ही खुराक है जो कि तूत के पत्ते होते हैं, जिनको हम बारीक बारीक काटते हैं। काटना इसलिए ज़रूरी है कि वो चूँकि छोटा बच्चा होता है वो डायरेक्ट बड़े पत्ते को खा नहीं सकता, तो छोटे छोटे टुकड़ों को वो बड़े आराम से, क्योंकि पत्ता तो उसने खाना नहीं इस वक्त, वो इसका रस चूसता है, तो हम उसको बारीक पत्ता देते हैं। ये खुराक जो है ये असल में ये तूत के पत्ते हैं बड़े बड़े तोड़े हुए हमने, ये सुबह के टाइम तोड़ के महफूज करके रख ली जाते हैं ताकि ठंड में आए इनकी मॉइस्चर बरकरार रहे, इनका दर्जा हरारत भी ज़्यादा ना हो और कमरे में भी ये महफूज पड़े रहें किसी थैले में या टोकरी में, वहाँ पर ये पड़ जाते हैं। जिस वक्त हम खुराक देनी हो तो इनको बाकायदा मशीन के साथ चॉपर के साथ काट कर बारीक बारीक करके, तो हम इस तरह मैं आपको अब दिखाता हूँ, ये कटे हुए पत्ते हैं बारीक। अब इनको यहाँ पे हम इस तरह ये कीड़े हैं इनको खुराक देते हैं थोड़ी थोड़ी, रेशम के कीड़े। अब जो पत्ते इनको बच्चे जो हैं वो खाना शुरू कर देते हैं और ये कीड़े पालने का मरहला जो है इस तरह सिलसिलावार शुरू हो जाता है। रेशम के कीड़ों की नशोनुमा का दारोमदार सिर्फ शहतूत के पत्तों पर होता है। रेशम के कीड़ों को ताज़ा, साफ और सब्ज पत्ते देना चाहिए। दरख्तों से पत्ते तोड़ने के दौरान में पत्तों को थैले में बंद करके दरख्त के साए में रखा जा सकता है। इस तरह पत्तों में नमी बरकरार रहती है। नाज़रीन, कीड़ों की उम्र के साथ साथ उनकी खुराक की जरूरियात बढ़ती रहती हैं। कीड़ों को इब्तदाई उम्र में छोटे छोटे पत्ते काट कर दिए जाते हैं। जब कीड़े बड़े हो जाएं, तो इनको सालिम पत्ते दिए जा सकते हैं। पत्तों को यकसां तौर पर कीड़ों के ऊपर फैला कर डालना चाहिए। नाज़रीन, खुराक की तरह कीड़ों की परवरिश की जगह पर भी ध्यान देना चाहिए। कीड़ों के बढ़ने के साथ साथ उनकी जगह की जरूरियात भी बढ़ती रहती हैं। परवरिश की जगह तंग होने की सूरत में उनकी नशोनुमा मुतासिर हो सकती है। अगर जगह की कमी हो तो स्टील के स्टैंड बनाकर ट्रे स्टैंड पर ऊपर नीचे रखकर कीड़े पाले जा सकते हैं। इस तरह जगह की बचत हो जाती है। मचान के पाए पानी से भरे बर्तन में डुबो कर रखे जाना चाहिए ताकि चींटियां वगैरह मचान पर चढ़ने ना पाए। देहात में एंगल आयरन दस्तयाब ना हो तो आप दरख्तों की लकड़ी और सरकंडों वगैरह की मदद से मचान बना सकते हैं। नाज़रीन, कुदरत ने रेशम के कीड़ों की जिंदगी कुछ इस तरह बनाई है कि वो रेशम बनाने से कबल अपनी मुख्तसर से जिंदगी में कुल 4 मरतबा नींदें करते हैं। हर नींद 1 से 2 दिन तक जारी रहती है। हर नींद से जागने के बाद कीड़े शहतूत के पत्ते दोबारा खाना शुरू कर देते हैं। नींद के दौरान में कीड़े बेहिस्सो हरकत पड़े रहते हैं और पत्ते खाना बंद कर देते हैं। नींद की हालत में कीड़ों को पत्ते नहीं देना चाहिए। नाज़रीन, कीड़ों को सेहतमंद रखने के लिए साफ सुथरा माहौल जरूरी है। कीड़ों के बिस्तर नई ट्रे में कागज बिछाकर हर तीसरे दिन तब्दील कर देना चाहिए। आइए पत्तों की मदद से कीड़ों का बिस्तर तब्दील करने का आसान तरीका देखते हैं। पहले आप अखबार बिछाकर नया बिस्तर तैयार कर लीजिए। अब पुराने बिस्तर पर शहतूत के ताजा पत्ते बखेरना शुरू कर दें। आप देख रहे हैं कि कीड़े थोड़ी देर में खुद ब खुद पत्तों पर चढ़ जाते हैं। अब आप इन पत्तों को कीड़ों समेत बारी बारी उठाकर दूसरी ट्रे में मुंतकिल कर सकते हैं। कीड़ों को नई ट्रे में फैला कर डालना चाहिए। इस तरह बगैर हाथ लगाए कीड़े एक ट्रे से दूसरी ट्रे में आसानी से मुंतकिल किए जा सकते हैं। बिस्तर बदलने का ये अमल हर तीसरे रोज जरूर कर लेना चाहिए। ट्रे का फुजला और गंदगी वगैरह दूर कर देना चाहिए। नाज़रीन, रेशम के कीड़े जो हमने पालने शुरू किए थे वो अब माशाल्लाह अपनी आखिरी स्टेज के करीब करीब हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ रेशम के कीड़े जो हैं, ये देखें, पहली, दूसरी, तीसरी, 4 नींदों के बाद ये कीड़ा इस साइज में आ जाता है और यहाँ पर ये आकर खुराक खानी बंद कर देता है और ये रेशम अपने मुंह से
निकालने के लिए तैयार है। उसकी निशानी ये है कि इसका एक तो रंग आप देखें कि पहले ब्लैक था, डार्क था, अब ये गोल्डन हो गया। इसका मतलब है इसके अंदर रेशम जो है वो सिल्क ग्लैंड तैयार हैं और ये उस जगह की तलाश में है जहाँ पर बैठकर ये अपना कोया ये सिल्क कॉकून बनाए। सिल्क कॉकून बनाने के लिए हम किसी भी जाड़ी जिसमें कांटे ना हो या ज़्यादा बू ना हो वो लेकर उसके मुट्ठे बना लेते हैं और उसकी बेड के गिर्द चारों तरफ इस तरह हम ये आप देख रहे हैं कि हम लगा देते हैं। अब कीड़े जो हैं जो तैयार हैं वो इन मुट्ठों पे आ जाएंगे और जो बाकी दूसरे जो अभी तैयार नहीं हैं वो खुराक अपनी जारी रखते हैं, उनके लिए पत्ते पड़े हैं, वो खुराक खा रहे हैं। और ये देखें आप वो रेशम का कीड़ा जो है अब अपने मुंह से तार निकाल कर अपने गिर्द लपेट रहा है और ये काम जो है ये तकरीबन कम से कम 4 दिन करता है। 4 दिन तक लगातार इसके मुंह से रेशम की तार निकलती रहती है और ये अपने गिर्द लपेटता रहता है और ख़ुद उसके अंदर बंद हो जाता है और चौथे दिन जाकर आप देखेंगे कॉकून जो है ये इसका कोया तैयार हो गया। ये एक्चुअली इसका अपना घर है, इसके अंदर ये प्यूपा स्टेज में बंद है। अब कॉकून को चेक करने के लिए क्या उसने रेशम पूरा अपने मुंह से निकाल लिया या नहीं, हम इसको थोड़ा सा मुट्ठे में प्रेस करके देखते हैं। अगर नरम है तो अभी टाइम और देते हैं, अगर नरम नहीं है कॉकून सख्त हो गई है तो इसका मतलब ये तैयार है, इसने रेशम पूरा अपने मुंह से उगल दिया है और कॉकून बन चुकी है। 4 दिन के बाद हम इनको मुट्ठों से फिर अलग करते हैं कॉकून्स को और उसको हार्वेस्टिंग करना कहते हैं और वो कॉकून्स इकट्ठी करके हम बाहर धूप में चादर बिछा के रख देते हैं और उसके ऊपर काले रंग का कपड़ा डाल दिया जाता है ताकि इसका जो वाइट फ्लेक्चर है वो ख़राब ना हो। ये काम भी हम 4 दिन या 5 दिन तक लगातार करते हैं ताकि उसके ऊपर अच्छी तरह धूप पड़े और प्यूपा जो लिविंग है वो मरे ही ना बल्कि उसका अपना फ्लैश वगैरह भी खुश्क हो जाए अच्छी तरह ताकि वो किसी किस्म का कॉकून को रेशम को नुकसान ना पहुंचा सके। 5वें दिन या 6ठे दिन हम इसका वजन करके बोरियों में डाल के जिम्मेदार भाई जो हैं अपने घर में रख लेते हैं और वो बोरियां अब मार्केट में भेजने के लिए तैयार हैं। मार्केट में व्यापारी होंगे वो उसकी नकद कीमत वहाँ अदा करके वजन करके उनसे खरीद लेंगे और जिम्मेदार पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाएगा। नाजरीन, ये रेशमी धागा है जो कोकोन या कोयों से तैयार किया गया है। ये धागा कई एक मराहिल से गुजरकर हासिल किया जाता है। आइए कोयों से तार निकालने का अमल देखते हैं। कोयों से साफ, मयारी और ज्यादा धागा हासिल करने के लिए जरूरी है कि कोयों की दर्जाबंदी कर ली जाए। ये भी जरूरी है कि अच्छे, साफ और मोटे कोकोन अलहदा कर लिए जाएं। छोटी और दागदार टूटियां साफ टूटियों में शामिल न की जाएं। खराब टूटियां धागे के मयार को मुतासिर कर सकती हैं। बेहतर है कि कोयों का वजन कर लिया जाए ताकि ये मालूम हो सके कि रेशम की फसल से कितने कोकोन हासिल हुए हैं। नाज़रीन, कोयों से तार निकालने के लिए ये जरूरी है कि उन्हें गर्म पानी में भिगोकर नरम कर लिया जाए। इस वक्त एक भट्टी पर कढ़ाई में पानी गर्म हो रहा है। पानी को अच्छी तरह उबाल लेना चाहिए। फिर इसमें 1 किलोग्राम कोये डाल दिए जाते हैं। छलनी की मदद से इन कोयों को चंद मिनट के लिए पानी में डुबोया जाता है। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि तमाम कोये यकसां तौर पर गर्म पानी से तर कर लेना चाहिए। कोयों के तार के सिरे ढूंढना जरूरी है। तार के सिरे किसी ब्रश से इकट्ठे किए जा सकते हैं। खुरदे ब्रश से तारों के सिरे आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। अब उबले हुए कोये इस मशीन की ट्रे में डाल दिए जाएंगे ताकि इनसे धागा निकाला जा सके। लीजिए नाजरीन, अब कोये मशीन तक पहुंच चुके हैं। ये हाथ से चलने वाली मशीन है जिसकी मदद से मशीन के पीछे लगी हुई चरखी पर रेशमी धागा इकट्ठा कर लिया जाता है। ये मशीन घर का कोई भी फर्द आसानी से चला सकता है। इस वक्त कोये गुच्छों की सूरत में है। इस मौके पर यह जरूरी है कि इन कोयों के सिरे तलाश कर लिए जाएं। इस दौरान चूल्हा जलाकर ट्रे का पानी मुसलसल गर्म रखा जाता है। नाज़रीन, चूंकि सिर्फ एक कोये से रेशमी धागा नहीं निकाला जा सकता, इसलिए चंद कोये के तारों को आपस में इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि जिस कदर मोटा धागा जरूरत हो हासिल कर लिया जाए। आप देख रहे हैं कि इस वक्त चंद तारों को मिलाकर एक तार बना ली गई है।
इस तार को बटन के सुराख से गुजारकर मशीन की चरखी तक पहुंचा दिया जाता है। लीजिए नाजरीन, कोयों से तार निकलने का अमल शुरू हो गया है। चरखी चलने से कोयों से धागा उतरता रहता है। ये धागा अलहदा होकर मशीन के दूसरी तरफ लगी हुई चरखी पर लिपटता जाता है। कोयों से धागा उतरने के दौरान धागा टूट भी सकता है। ऐसी सूरत में धागा दोबारा जोड़ लेना चाहिए। कोयों से धागा निकलने का ये अमल जारी रहता है। इस तरह कोयों से तमाम धागा चरखी पर इकट्ठा हो जाता है। जब तमाम धागा हासिल हो जाए तो ये धागा थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया जाता है ताकि वो खुश्क हो जाए। इसके बाद ये जरूरी है कि इन धागों को बल देकर महफूज कर लिया जाए। नाजरीन, जब धागा हासिल हो जाए तो घरों में चरखे पर इनसे रेशमी धागे की नलकियां भी तैयार की जा सकती हैं। रेशमी धागे की यही नलकियां बाद में कपड़ा तैयार करने के काम आती हैं। इसको जो आप देख रहे हैं ये मतलब देसी खड्डियाँ हैं। देसी खड्डी है, इस पे रेशम का कपड़ा बनता है। एक मतलब कारीगर आदमी 3 मीटर कपड़ा बना सकता है। ये टाइम इसका होता है तकरीबन सुबह 8 बजे से 4 बजे तक। ये 8 घंटे की ड्यूटी, मतलब कि 8 घंटे के अंदर में 3 मीटर आदमी कपड़ा बना सकता है बहुत आसानी के साथ। और ये देहातों में या मकसद आम जगहों में नहीं है इस तरीके की खड्डियाँ रेशम की। आदमी अगर चाहे तो इसको सीख सकता है। बहुत ये आसान, इतना मुश्किल काम नहीं है। नाजरीन, ये है वो रेशमी कपड़ा जो घरेलू खड्डियों पर तैयार किया गया है। ये दीदा ज़ेब कपड़ा अवाम में खासा मकबूल है। रेशम के कीड़े पालना एक नफा बख्श कारोबार है। अगर आप चाहें तो रेशम साजी की सनत अपना सकते हैं। यकीनन आपकी चंद हफ्तों की मेहनत एक माकूल आमदनी का जरिया बन सकती है।